So, till now we have discussed about taxonomic categories. Actually, some of the topics are not in this session syllabus, but let us complete all the things of this chapter. This is general chapter, so not to be do away with some of the topics. सभी को हमें cover वहाँ पे करना है. So till now this some of the taxonomic all the taxonomic categories, and we have seen the examples also. One table is given in your NCERT book, which is somewhat modified and given here, but the content is same. So some taxonomic categories are given here from this species, biological name to genus, family, order, class, and phyla. Kingdom here not included. So let us take one example of man. This should be human actually, I think, because whether it is man or woman, they both are having same name. That is what Homo sapiens. ये थोड़ा सा इस PDF में मिस्टेक है, तो I will correct it. This is human. This is human. This is the biological name. This is the biological name for human being. Then what is the genus for this one? Homo. And what is species? Can anyone tell me what is the species of human? Yes. This is sapiens. Okay. Then family is hominidae. The family in which human being is included is known as hominidae, and the order is primata. We are primates, ठीक है ना? Some non-primates are also there. So primata, and then comes class Mammalia, in which all the animals which are having mammary glands are included. Two exceptions are there. They will be told you in the chapter number 4. And phylum is Chordata. One separate phylum is there among animals. There are two phylum. One is Chordata, another one is non-Chordata. They are based on the presence of three characteristic features. If they are present in any animal, that is included in Chordata, and if they are not present, they are included into non-Chordata, like notochord, gills, slits, and all these things. Okay. One domestic house fly, name is Musca domestica. Musca is genus and domestica is what? Species. Domestica word actually name taken because it is related with as it is found in our commonly in our houses. हमारे घरों में कॉमनली पाई जाती है, इसके लिए इसका नाम डोमेस्टिका पड़ गया. डोमेस्टिक हम बोलते हैं ना, डोमेस्टिक है ये. हम डेली लाइफ में हम घर में आसपास में रहते हैं, तो उसको डोमेस्टिक वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसी को मॉडिफाई करके ये स्पीसीज नेम बनाया. जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, order Dioptera, and class is Insecta. Insecta largest class in the world. वर्ल्ड में इसके जितना कोई क्लास नहीं है. इतने इंसेक्ट अपनी अर्थ पे जितने हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इनटू आर्थ्रोपोडा फाइलम एंड इंसेक्टा क्लास. इतने सारे इंसेक्ट हैं. एनिमल्स का 70% जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम कवर करता है. एनिमल्स का 70% एनिमल्स में वो आर्थ्रोपोडा से आते हैं. बाकी 30% में हम लोग सब लोग आते हैं, बाकी एनिमल्स आते हैं. देन मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल नेम. अब दो तीन चीज़ें आती है, कुछ बोलते हैं साइंटिफिक नेम और कुछ लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम, बोलते हैं बॉटनिकल नेम, और कुछ बोलते हैं जूलॉजिकल नेम. मैं इसको यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ. ओके. बायोलॉजिकल नेम, और कुछ लिखते हैं इसको सम आर राइटिंग इज बॉटनिकल नेम.
और कुछ लिख बोलते हैं जूलॉजिकल नेम बताओ. If we are calling it scientific or biological for any living organism, they are same. Botanical is also same. Biological name bolo, scientific name bolo, they are common for both animals and plants, or whatever is fungi is also there, bacteria is also there. But whenever it is related to plants only, we will be using the word botanical name. तो आपको ये बोला जाए, write the scientific name of mango, write the biological name of this mango, write the botanical name of this mango. These three things are same, nothing different. And if you are calling it zoological name, it is related to animals only, not for fungi or bacteria. क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बैक्टीरिया है, फंजाई है, एनिमल्स है, प्लांट्स है. तो if we are calling it scientific, it is common for all. We are calling it biological name, it is common for all. But whenever we are calling botanical or zoological, it becomes specific for plants and animals respectively. Okay, so don't get confused with these four names. They are nothing, they are just related to plants and animals, and rest first two names are something related to all organisms. Okay, Mangifera family, Anacardiaceae, order Sapindales, क्लास डाइकोटिलिडनी एंड एंजियोस्पर्मी. अब देखो डाइकोट और मोनोकोट में कुछ बच्चों को पता नहीं रहता है. उसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, उसके सीड को ओपन करो. ओपन दैट सीड. अगर उसमें 2 कोटिलिडोन्स हैं तो उसको बोलेंगे डाइकोट, अगर उसमें 1 है तो उसको मोनोकोट. जैसे आम है, आम की आप खाते हैं तो गुठली अंदर रहती है. दैट सीड इज हैविंग सम कवरिंग ऑल्सो, हार्ड कवरिंग. उसको आप तोड़ के किसी हथौड़ी की मदद से उसके अंदर को सीड को निकालिए. आप उसको ओपन करते हैं तो कितने कोटिलिडोन दिखते हैं बेटा? कभी करके देखा है ये सब? कितने दिखते हैं उसके अंदर? यस स्टूडेंट्स, आम की अगर सीड को ओपन करते हैं तो उसमें कितने कोटिलिडोन्स दिखते हैं? अगर नहीं करके देखा है तो अब तो आम नहीं आ रहा है सर. 2 होते हैं उसके अंदर, ध्यान से देखिएगा. पहले हम तो क्या करते थे, उस गुठली को उसको उबाल कर खाते तो बहुत मीठी लगती थी. आप खा के देखिएगा कभी अगली सीजन में, अभी नहीं, अब आम बंद है. ओके, वीट गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिबम, जीनस इज ट्रिटिकम, स्पीसीज इज एस्टिबम. पोएसी फैमिली, it is this family is also one of the largest family having all this and this cereals, अनाज जितने होते हैं सब वो इसमें आते हैं. ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडोनी. इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं मोनोकोट में, दे आर हैविंग ओनली 1 कोटिलिडोन. जैसे बाजरा है, गेहूं है, ये सब, मूंग है, ये सब इसमें आते हैं. एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्म. सो दिस इज सम एग्जांपल्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड what are the genera, what is the species. Okay, now this topic is deleted from your syllabus yet, but still I will make you understand. This is introductory topic, so we will study it here. So 9 things are here by which we can, by using them we can easily make our taxonomic work easier. हम उसको easier बना सकते हैं अगर ये काम हम लेते हैं तो 9 things are there, one by one will be taking them. Herbarium, whenever you will be studying BSc or MSc, you need to make these herbarium sheets for your practicals. Okay, तो क्या होती है? कुछ नहीं, एक पेपर शीट होती है, ब्लैंक पेपर शीट होती है. आप क्या करेंगे, छोटे से उखाड़ लेंगे, वहाँ से उखाड़ेंगे और उस प्लांट को उखाड़ कर उसको अच्छे से साफ करके ड्राई करेंगे एकदम, और उस प्लांट को उस शीट के, बड़ी शीट होती है, मतलब A4 साइज पेपर नहीं, उससे बड़ी शीट चाहिए, उसके ऊपर उस प्लांट को हम चिपका देते हैं और टेप से वहाँ पे टेप लगा के उसको जगह जगह चिपका देते हैं. पूरा प्लांट, इट मस्ट बी हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, और उसको चिपका के हम वहाँ कागज़ पर कुछ चीज़ें अच्छे से लिख देते हैं वहाँ पे कि अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटनिकल नेम, क्या नाम है, लोकल उसका क्या नाम है, और उसका बोटनिकल नाम क्या है. फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर मतलब उसने जिसने उसको, कलेक्टर मतलब जिले का कलेक्टर नहीं उसमें,
जो नाम उसने उसको कलेक्ट किया उसका नाम, वो सब वहाँ पे चिपका देते हैं। तो ये हमने भी बीएससी में अपने काम ये किया था। आप चाहे ऊपर चिपकाओ चाहे नीचे चिपकाओ, उस पेज को चिपका देते हैं और उसको आप एक अच्छे से रख देते हैं। तो हर्बेरियम शीट होगी, और इन हर्बेरियम शीट को जैसे ड्राई एनवायरनमेंट में बॉक्सेज में हम रखते हैं, उस दैट प्लेस इज नोन एज हर्बेरियम। हर्बेरियम नाम उसका। तो दैट विल बी स्टोर हाउस। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं? मान लो कोई प्लांट स्पीशीज कोई टाइम बाद में विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम ये सैंपल्स पड़े रहेंगे, उसके बेसिस पे उसकी स्टडी हम लेंगे। दिस लीव्स आर लाइक दिस वन, दे आर हैविंग लेंथ एंड विड्थ आर लाइक दिस वन। दीज स्टडीज कैन बी डन लेटर ऑन इफ द स्पीशीज इज नॉट देयर और स्पीशीज इज सीजनल। अगर वो सीजनल है तो उसको हम सीजन में भी उसको स्टडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन्स। ये तो आपसे कई गए भी होंगे। There are in universities and some research institute gardens are there where this plants are grown there artificially. तो पहले वाले में क्या है, हर्बेरियम में all things are dead, all the plant samples are dead. Case live examples of plants is there, तो हम उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। And each plant is labeled with its botanical name and family. हर एक प्लांट के ऊपर उसका बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली लिखी रहती है। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप ताजमहल कुछ प्लांट्स है उस पर ऐसा किया हुआ हो सकता है। जैसे हमारे स्कूल में भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा करें कि हर एक प्लांट पे कुछ इस तरह का लेबल लगा दें। आप में से कई लोग अलग अलग जगह गार्डन में गए होंगे, तो आपको प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखा रहेगा, नीचे उसकी फैमिली लिखी रहती है। किसी ने देखा है बेटा ऐसा कहीं पर? हैव एनीवन सीन सच थिंग्स? हाँ बिल्कुल। ये आप ज़रूर ऐसी नई जगह जाएंगे, कुछ जगह गार्डन है बड़ा, तो उसमें इस तरह की जगह आपको होते हैं। सो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ वर्ल्ड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इज द प्लेस इंग्लैंड। इट इज़ द बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। देन इन इंडिया इट इज़ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। इन हावड़ा और कोलकाता में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर टू डिफरेंट प्लेसेस बट नाउ दे आर मर्ज्ड। दे अभी वो सब मिल गए आपस में, तो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे। देन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ठीक है, ये लखनऊ में। दिस इज रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज वर्किंग ऑन द प्लांट स्पीशीज। बायोलॉजिकल म्यूजियम, इट इज़ हैविंग प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के जो स्केलेटन हो सकते हैं, जैसे पूरा का पूरा बॉडी है, ये यहाँ पे रखा जाता है। जैसे ये देखिए आप, ये एक बायोलॉजिकल म्यूजियम है, दैट इज़ फॉर प्लांट्स एंड दिस इज़ फॉर एनिमल्स। एट वेटनरी कॉलेज वगैरह में जाते हैं या कोई बेसिक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे आपको इसको देखने को मिल सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिल सकता है इस तरह की। उनके सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम होता है, पूरी बॉडी होती है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है कि लेटर ऑन वी कैन स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम कंटेन्स स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेन्स इन जार। अब इनको आप अगर ड्राई के रूप में भी रख सकते हैं, या फिर जैसे अपन बायोलॉजिकल लैब में, हमारे बायोलॉजी लैब में जैसे कुछ स्पेसिमेन रखे हुए हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, इनके कुछ सैंपल्स रखे गए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जैसे फॉर्मलिन इज देयर। व्हाट इज दैट? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है? दिस इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें। यानी अपन एक सॉल्यूशन मेकअप करते हैं वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें 40% वी हैव टेकन व्हाट? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO वो लेते हैं हम। HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं। दैट सोल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व द डेड सैंपल्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं। इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स लाइक आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, उनको अपन ड्राई करके भी रख सकते हैं, उसमें ये सोल्यूशन डालने की जरूरत हमें नहीं है। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स, देखो यहाँ पे एक हाथी को कर रखा है, उसके अंदर क्या भर दिया उन्होंने? स्टफ्ड
कर दिया, अंदर कागज़ वगैरह भर दिए बीच में, और उसको वैसा का वैसा खड़ा कर दिया जैसे रियल हाथी खड़ा रहता है। कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स, एनिमल के स्केलेटन भी हम रख सकते हैं। अब जैसे यूएस वगैरह में कुछ एक ऐसे डायनासोर, अब आप बोलेंगे डायनासोर का स्केलेटन कहाँ है? वो बनाया गया आर्टिफिशियली, दे हैव मेड एंड दे हैव केप्ट सम सैंपल्स देयर। तो बच्चे वगैरह वहाँ देखने के आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम में हम एनिमल्स प्लांट्स को दोनों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बट दे ऑल आर इन डेड फॉर्म। जूलॉजिकल पार्क्स, यहाँ पे लाइव वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे। जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में हमने देखा ऑल द प्लांट्स आर लाइव, हियर इन जूलॉजिकल पार्क, जिसको शॉर्ट में जू बोलते हैं, आजकल जू बंद हो गए हैं। जू जिसको हिंदी में चिड़ियाघर बोलते थे, चिड़ियाघर सब बंद हो गए, बट वहाँ पे कुछ ऐसे जू हैं। चिड़ियाघर मतलब जैसे वो वाले पर्पज़ के लिए जहाँ पे कुछ एनिमल्स को सताया जाता था, इस तरह के बंद हो चुके हैं। बट जूलॉजिकल पार्क्स आर स्टिल देयर वेयर सम एनिमल्स आर केप्ट पोजिशन बाई गिविंग देम सम नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, बट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर ह्यूमन केयर को रखा जाता है। अब इससे क्या होता है, हमें इन एनिमल्स की फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। देखिए आप यहाँ पे क्रोकोडाइल है, बियर है, टाइगर है, डियर है, एलिफेंट है, बहुत सारे। और यहाँ पे आदमी, हो सकता है आने वाला टाइम ये ज़माना आ जाएगा आदमी को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाए, इसी के लायक है वो। And some of the last one is key. Key is the analytical method of identification of organism based on similarity and dissimilarity. इसमें क्या है कि कुछ हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं, yes or no. Based on them, we classify the organism and keep them in different categories. तो इसके लिए there are some contrasting characters generally in pair are called couplet. couplet मतलब कपल। हम दो सेंटेंस बनाते हैं। एक जैसे मान लो कि hairs are found, yes or no। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ड्राई स्किन, जिनकी ड्राई रहती है, तो अगर yes है तो आगे अपन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे, और अगर no है तो अगर ड्राई स्किन नहीं मोइस्ट स्किन है तो उसमें जैसे सैलामेंडर है, सैलामेंडर एक एम्फीबियन एनिमल है, और उसकी स्किन क्या होती है, एकदम से मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है। तो ड्राई स्किन नहीं है, ड्राई स्किन फाउंड यस और नो, नो है तो उसको एक कैटेगरी में, यस है दैट विल बी स्टार्टेड विद हेयर, कि उसकी स्किन पे हेयर है कि नहीं। अगर हेयर नहीं है तो उसको सेपरेट कर देंगे। जैसे लिजर्ड है, क्या छिपकली की स्किन मॉइस्ट होती है कि आपने देखा है कभी, यस और नो? जैसे आप लोग डोमेस्टिक अपनी लिजर्ड की आप बात करें तो क्या उसकी स्किन मॉइस्ट होती है क्या, नमी वाली होती है क्या? यस बेटा, मॉइस्ट इतनी नहीं होती है, पानी जितना नहीं होता है, वो आपको लसी सी लगती है, वो ड्राई होती है। आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज ड्राई। So many lizards are there. If it is no lizard, yes, then उसके बाद में हम अगला करेक्टर रखते हैं फिर ओपोजेबल थम्स। ओपोजेबल मतलब जैसे हमारा हाथ है, मेरा हाथ जैसे आपको दिख रहा है, तो बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, वो फिंगर्स से थोड़ा सा ओपोजिट साइड में होता है, इस तरह से ओपोजेबल या ओपोजिट मतलब मुड़ा हुआ होता है, जिस और फिंगर्स होती है। जैसे मेरी मान लो आपको ये फिंगर्स दिख रही है, इसी और ही मेरा थंब है कि नहीं? देखिए बेटा आपको दिख रहा है ना, ये इधर है, इधर मेरा थंब है, इस साइड में है। हमारा थम्स और फिंगर्स की डायरेक्शन सेम है, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें थंब और फिंगर्स की डायरेक्शन एक और नहीं होती है। थंब एक अलग डायरेक्शन होता है और फिंगर्स अलग डायरेक्शन होती है। तो अगर तो नो में क्या है, टाइगर है। आप इसका देखिएगा ध्यान से, थंब और इसकी फिंगर्स दोनों एक दिशा में नहीं होती है, नो। और यस में अगर अपन बोलते हैं तो बाइपिडल है, क्या दो पैरों से चलता है, ये केवल दो पैरों से चलता है। अगर नो है तो गोरिल्ला हो गया, नो है तो गोरिल्ला। आप देखते हैं वो चारों पैरों से चलता है, बाइपिडल मतलब दो से चलता है। तो नो है तो ये कौन है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा जानवर है
जानवर बोलूँगा उसको मैं, जो 2 पैरों से चलता है, हाथों और पैरों दोनों का उपयोग ये कभी भी नहीं करता है। तो देखिए आप इस तरह से इस की मेथड से हमने किस तरह से 2 कैरेक्टर रखे, उन कैरेक्टर को अपन कपलेट बोलते हैं। दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और फिर यस नो का ऑप्शन उसमें बनता है। और हर एक स्टेटमेंट को इन द की देयर आर 2 स्टेटमेंट विच आर इन टू ईच अदर एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड लीड। उसको क्या बोलते हैं हम? लीड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कॉम्बिनेशन इसका बनता है की का, और क्लासिफिकेशन हो पाता है। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया की बात इसने करी है, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन की। बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसके बारे में अपन स्टेनिंग एक मेथड है विच वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। तो उसके बेसिस से जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं उनका कलर अलग होता है, और जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनका कलर बैक्टीरिया का अलग होता है। तो ग्राम पॉजिटिव है यस, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। और ग्राम नेगेटिव है तो जिसमें रोड शेप, क्या उसमें रोड शेप सेल होती है, उसकी शेप जो होती है, क्या वो बैक्टीरिया की सेल इस तरह से रोड शेप होती है? इफ यस, कैन दे टॉलरेट ऑक्सीजन, क्या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं? और अगर नो है तो उसमें क्या हो गए कोकाई और प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, क्योंकि कोकाई की मतलब होता है उसकी शेप कैसी होती है? गोल होती है। कोकाई बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है? गोल होती है। तो वो रोड की कैटेगरी में फिट नहीं होते, तो उनकी अलग कैटेगरी बन गई है। इफ़ दे कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, तो इसमें अगर यस वाला है, क्या वो फर्मेंटेशन कर सकते हैं लैक्टोज का, यानी वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम कर सकते हैं? अगर यस, तो क्या वो सिट्रिक एसिड का यूज करके कार्बन के सोर्स में आगे कर सकते हैं? इस तरह से आप देखेंगे अगर उस कैटेगरी में नो हो गया तो वो काम वही बंद। अगली अगर यस है तो उसका फिर स्टेटमेंट आएगा, और फिर उसमें यस नो आएगा, फिर यस वाला सेंटेंस आएगा। इस तरह से काम चलता जाएगा। लास्ट में हम सभी बैक्टीरिया की कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये की मेथड है। आपकी किताब में थोड़ा सा दिया हुआ है, 4-5 लाइनें दी हुई है इसकी। फ्लोरा मतलब प्लांट्स। इसको याद करने का, फ्लोरा एंड फोना 2 वर्ड्स आर देयर। तो आप इसको फ्लोरा मतलब फ्लावर, जिनमें फ्लावर होते हैं वो फ्लोरा हो, यानी प्लांट से रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे क्या वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे? यस। ये तो आपको अंडरस्टैंड मेमोराइज करने की बात है कि प्लांट्स कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया आर इंक्लूडेड इन दिस फ्लोरा। One is that is animals found in that particular area. Manuals are the record that contain information for identification of names of species found in that particular area. में जितनी होती है वो सब उसका मैनुअल में होती है। These are records that contain information on any one taxon. यानी कोई टेक्सोन पे, जैसे मान लो है कि टेक्सोन में जैसे मान लो कि जीनस की बात हमने करी कि ये वाला जीनस है, जैसे मेंजीफेरा है, तो उस मेंजीफेरा की बात हम करते हैं, तो उस मेंजीफेरा की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर वो रहती है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्राम। अगर कोडेटा फाइलम की बात करता है, एक टेक्सोन है, तो उसमें कोडेटा फाइलम में आने वाले जितने जीव हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड उसमें रहेगा। कैटलॉग, इट इज़ हैविंग अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज। जैसे मेंजीफेरा तो एम पे आएगा, होमोसेपियंस तो एच पे आएगा, तो उससे अल्फाबेटिकल पूरी लिस्ट इसमें दी हुई होती है कैटलॉग में। दी एंड। ओके।